وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی سب کچھ اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا۔ دولت نچھاور محبوب قدموں میں اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ مخمل کو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ دے دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو مخمل کو واضح برا لگا تھا۔ شکر تھا کہ خاندان کی عورتیں وہاں نہیں تھی، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ مخمل پہ ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ۔ حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز وہاں سے چلتا نکل گیا۔ اور فادی احسن ٹھیک کہہ رہا ہے، مخمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان، آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مخمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کے ادھر ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی۔ تو مخمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہوں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پہ جھک کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوں کے سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی، تو بالآخر نل کھول کر منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج آخری دفعہ رو رہی ہے۔ وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ حاصل کرنا چاہا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راس نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اسے ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پہ جا کے سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسٹاپ پہ چلی آئی تھی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مخمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ بھوری اونچی پونی بھی ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا، اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت تیز سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پہ بیٹھی اور سر دونوں ہاتھ میں تھام دیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پہ بیٹھی، بیگ کا اسٹریپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی۔ پھر جیسے فارغ ہو کر مخمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ او نو، ایسے نہیں کہتے۔ ابھی تو تمہیں وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوندھ رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پہ آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھی، اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، کوئی قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ وہ ویسے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے باتیں کرے گی؟ مخمل سرسبز سی اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر ہی لے جاؤں گی۔ وہ تمہیں اس زبان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور پھر جب تم روز اس کا ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی ہر صفحہ تمہارے لیے یسٹرڈے کی روداد ہے اور تمہیں ٹمارو کی تدبیر بتا رہا ہے۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کا کل کا علم ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تو وہ تمہارا یسٹرڈے کی روداد ہی رہے گا، لیکن اگر وہی صفحہ تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی روداد بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی صفحے کا ایک ہی دن میں مطلب بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو۔ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ بھی تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اپنی نصف میں مخمل نے خاصا عقلمندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ وہ بھی پرسرار طریقے سے مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے حصہ دلوائے گی۔ اچھا، وہ متغیر سی تھی۔ پھر میں یہ لے لوں؟
पहले खूब अच्छी तरह सोच लो, सब सोच लिया है। वो तेज़ी से बोली और किताब पर हाथ रखा। मुबादा ये इसे वापस ही ना ले जाए। फिर ले जाओ, मगर ये याद रखना ये एक बहुत बड़ा बोझ है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुमने वो जिन्हें तुम अमलियात कहती हो कर लिए और वैसे ही किया जैसा ये किताब तुम्हें कहे, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। तुम इस किताब में रहने लगोगी, इसी से बातें करने लगोगी, इसके अलावा तुम्हें कुछ नज़र नहीं आएगा। दीवानी हो जाओगी, शहज़दा मजनू। और फिर अगर तुमने इसको छोड़ना चाहा तो तबाह हो जाओगी। वो भी जाएगा जो पहले से था, वो भी अजाब बन जाएगा। जाओ, इसे ले जाओ। उसने स्याह जिल्द वाली किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई, और जब मखमल इब्राहिम ने उसे थामना चाहा तो उसके हाथ लरज रहे थे। थैंक यू। क्या ये मुझे तुम्हें वापस करनी होगी? नहीं। और जब मैं पूरी पढ़ लूँ, ख़त्म कर लूँ, तब फिर से शुरू कर देना। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। थैंक यू। वो कपकपाती उंगलियों से किताब पकड़े तेज तेज चलती घर की सिमत बढ़ गई। किताब की स्याह जिल्द सर्द थी, बेहद यख सर्द। कोई इसरार था इसमें, कोई कदीम राज जिसे वो आज बेनकाब करने जा रही थी। जब उसने गेट खोला, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी टांगें कांप रही थी, और दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। बहुत भारी बोझ था जो उस थकी हुई लड़की ने उठा लिया था। अंदर ही अंदर उसका दिल डर रहा था, कहीं वो तबाही के रास्ते की तरफ तो नहीं जा रही। ये स्याह अमल, ये स्याह इल्म, सफली अमलियात, ये अच्छी चीज़ें तो ना थी, फिर वो क्यों इसे उठा लाई थी? उसने रुक कर सोचना चाहा, मगर अब वापसी का कोई रास्ता ना था। दौलत निछावर, महबूब कदमों में दुनिया पर आज इसे बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करनी थी। वो किताब कैसे इस हर मसले का हल थी, और उसे बेगम नुमान के बेटे का ठुकराया गया रिश्ता याद आया। उसे राज फवाद की बात पे सबका रद्द-ए-अमल याद आया। उसे अपनी बेपनाह दौलत भी याद आई थी जिस पे ऐश कोई और कर रहा था। फिर वो कैसे इस लड़की को वो किताब सब खजानों की कुंजी वापस कराती। फिर वो नहीं रुकी और किताब सीने से लगाए, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चलती लाउंज में दाखिल हुई। और कहाँ से आ रही हो? जो अपने ख्यालों में दम थी, आवाज़ पे घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। सामने ताई मेहताब कदरे मशकूक नज़रों से उसे देख रही। वो ताई मेहताब थी। उसने बेख्तियार कुछ लोगों पे ज़ुबान फेरी। वो नादिया से कुछ नोट्स लेने थे, ज़रा स्टॉप तक गई थी। अम्मा को बता कर गई थी। हाँ, तुम्हारी माँ तो कहीं की लैंड लेडी है जिसकी इजाज़त काफ़ी थी। होताई चचा असद चचा को भी बताया था। पहली दफ़ा होताई के सामने यूं हकला रही थी। अच्छा जाओ, सर ना खाओ। ताई बेजार से हाथ चलाकर आगे बढ़ गई। वो कमरे की तरफ लपकी और जल्दी से अलमारी खोलकर एक खाने में सारे कपड़ों के नीचे वो दबीज स्याह किताब छुपा दी। फिर अलमारी एहतियात से बंद की। इधर उधर देखा कि सर झुककर किसी ने देखा नहीं। मखमल बाहर अम्मा ने बकारा तो वो जल्दी से चेहरे पे आया पसीना पूछती बाहर आए। जिस सर को किचन के इतने सारे खाने नाश्ता बनाते मसरूफ देखा। पैन में अंडा पलटते हुए मुड़कर उसे देखा। तुम तो कॉलेज गई थी, इतनी जल्दी आ गई? जी बस करिए। ओहो, आज सबको मेरी फिक्र क्यों पड़ गई? नादिया से नोट्स लेने थे, मिल गए तो आ गई हूँ। खामखा ही चिढ़ गई। फिर इधर उधर बर्तनों में हाथ मारती बाजार कुछ तलाश करने लगी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा नाश्ता तो कर लो। नहीं भूख नहीं है। वो बस मंजर से हटना चाहती थी, सो इतना कहकर बाहर लॉन्च में आ गई। जहन अभी तक अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपी किताब में अटका हुआ था। फिर घर के कामकाज और इसके फाई के बाद मुसरत के साथ मशीन लगाई। वो मैकेनिकी अंदाज में खामोशी से काम करती रही। मुसलसल उसका दिल पलट पलट कर उस किताब की तरफ जाता था। वो चंद बार अंदर आई और अलमारी खोलकर कपड़ों के पीछे हाथ थपथपा कर देखा। किताब वहीं रखी थी। फिर वो सारा दिन मुकद्दर घूमती रही कि उसे जाकर पढ़े, कुछ पता तो चले, कोई राह तो निकले। मगर कामों का बोझ और कुछ फितरी सा खौफ था कि वो इस किताब को निकालने की हिम्मत ना कर सकी। रात खाने के बाद उसने जब सबको डाइनिंग हॉल में स्वीटिश में मसरूफ पाया तो बिलाखिर अलमारी से वो भारी किताब निकाली और उससे सीने से लगाए दबे पाँव सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती थी। रोमिंग हॉल से बड़ा रास्ता लाउंज किचन की तरफ जाती मेहताब ताई ने उसे चौंक कर उसे आखिरी सीढ़ी फलांगते देखा। ये मखमल क्या करती फिर रही है आज? उन्होंने पीछे से आती नाइमा चाची को रोककर सरगोशी में पूछा। अभी थोड़ी की देर किताब पकड़े ऊपर गई। अच्छा वो तो जसूस ताई के करीब आई। पढ़ाई तो खत्म हो गई है और छत पे तो कभी पढ़ने गई नहीं। जरूर दाल में कुछ काला है। और इन सरगोशियों से बेखबर वो बाहर टेरेस पे निकल आई। आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और रीलिंग के साथ नीचे जमीन पे बैठ गई। किताब घुटनों में रखे वो कितनी ही देरी से देखती रही। महरूमी और नासाइयों और दुखों के इस बरस पर पुराने कर्ब किया जैसे इंतहा हो चुकी थी। उसे अब मजीद बर्दाश्त ना होता था। गलत हो या सही, वो जिंदगी से अपना हिस्सा जरूर वसूल करेगी। एक ठोस और कतई फैसला करके मखमल इब्राहिम ने किताब की स्याह जिल्द पे हाथ रखा। वो बेहद सख्त थी, ठंडी और पुरसकून। वो जिल्द पलटने ही लगी थी कि एकदम टेरेस का दरवाजा धाड़ से खुला। उसने घबरा कर सर उठाया और एक लम्हे को तो जमीन आसमान उसकी निगाहों के सामने घूमने लगे। आका जान, दोनों चचा ताई, मेहताब, नाइमा चाची और लड़कियां और मुसरत भी सब एक साथ बाहर आए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आका जान गुस्से से गुर्राए थे। मखमल क्या कर रही हो इधर? वो अक्का बक्का मुंह खोले उन्हें देखती रह गई। इधर क्या बैठी हो? सामने आओ।
ताई मेहताब चमक कर बोली। उसकी तो जैसे टांगों में जान ही ना रही थी। बमुश्किल उठी और 2 कदम आगे बढ़ाए। किताब इस तरह दोनों हाथों में पकड़ी थी और पूरा जिस्म लरज रहा था। वो आगा जान, मैं पूछ रहा हूँ इतनी रात को इधर क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ रही हूँ। लफ्ज़ लबों पे ही दम तोड़ गए। उसकी टांगें कांपने लगी थी। क्या पढ़ रही हो? इधर दिखाओ। आगा जान की लहजे की सख्ती कम नहीं हुई थी। उन्होंने किताब लेने को हाथ बढ़ाया तो बिदक कर पीछे। कुछ नहीं। उसने किताब पीछे करना चाहिए और फिर इसने देखा कि आगा जान के पीछे खड़ी मुसरत की आंखों में आंसू थे। ताई फातिहाना मुस्कुराई थी। अरे हम भी तो देखें, भरी रात में इधर कौन कौन सी किताबें छुपाकर खतो किताबत हो रही है। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये लड़की को चांद जरूर चढ़ाएगी। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। नहीं ताई, नहीं नहीं, वो फटी आंखों निगाहों से मैं देखती नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं कुछ नहीं किया। मैं तो पर आगा जान ने जोर से उसके हाथों से किताब छीनी। पढ़ रही थी तो दिखाती क्यों नहीं? वो एक हसीली नज़र इस पर डालकर उन्होंने किताब अपने सामने की। मैं भी कहूँ क्यों रातों को छत पे आ जाती, किसके साथ मुंह काला करती है? ये जो जुबान इतनी लंबी हो रही है, यानी मैं भी ये कहूँ कोई तो है इसके पीछे। आगा साहब, इससे कहिए कि जिस मरदूद के लिए चिट्ठियां डालने इधर आती है उसे कहे कि अभी आए और 2 बोल पढ़ा कर ले जाए। खानदान भर में बदनाम करेगी हमें क्या? और इसे लगा आज वो वाकयातन हार गई। जान किताब के सफ़े पलट रहे थे। हर पलटते सफ़े के साथ उसका दिल डूबता जा रहा था। उसने सर झुकाकर आंखें सख्ती से मेज ली। आज वो इसे यकीनन कत्ल ही कर डालेंगे। वो सफली बुनियाद में पड़ गई थी। कभी नहीं बख्शेंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया औरत? आगा जान ने एक दम झाड़े तो उसकी रही से जान भी निकल गई। उसे लगा वो लहरा कर गिरने को है। जब मैंने कहा क्या कहा, ताई की हकलाती आवाज़ निकली। मखमल जैसे किसी ख्वाब से जाकर सर उठाया। वो खुली किताब हाथ में पकड़े मखमल से नहीं, ताई मेहताब से बात कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई इस यतीम बच्ची पर इल्ज़ाम लगाकर? हम सबको इकट्ठा करके डूब मरो तुम। ऐसे अल्फाज कहने से पहले वो अब छत पर पढ़ भी नहीं सकती। मखमल ने पलके जोर से झपकाई। ये आगा साहब क्या कह रहे थे? मगर आगा साहब, वो इस किताब में डूब मरो तुम बेदीन औरत हो। कुरान पढ़ रही थी। तुम कुरान की हुर्मत का तो पास रख लेती। उन्होंने स्याह किताब बंद की, उसे चूमा, आंखों से लगाया और मखमल की तरफ बढ़ाया। बेटा नीचे पढ़ लेती तो इस सब परेशान ना होते। ये लो। वो उसे किताब थमाकर एक कुटीली निगाह उन औरतों पर डालकर वापस हो लिए। ना तो अब चोरों की तरह पड़ेगी तो बंदा शक ही तो करेगा, वरना क्या मेरा दिमाग खराब है कि यूं ही कहती? ताई शर्मिंदा सी पलटी। आगा जान कभी कभार यूं ही सबके सामने ताई मेहताब को झड़क दिया करते, खुसूसन जब वो अपने रिश्तेदारों पर बेदरेक रुपए खर्च करती थी। उन्हें तो क्या, आहिस्ता आहिस्ता सब नादम पलट गए। वो इसी तरह साकत सी किताब हाथ में लिए खड़ी थी। टेरेस खाली हो चुका था, सब जा चुके थे और सुकून और सुरखरू मसरत भी। और वो इसी तरह पत्थर का बुत बने वहीं खड़ी रही। इस किताब का हिस्सा हमारे दूसरे दिन की रोदात है। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करोगी। इस स्याह फाम लड़की का एक एक फिक्रा तमाचे की तरह उसके मुंह पे बरस रहा था। तड़क तड़क तड़क। उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं पा सकेगी। इस अंधेरे टेरेस पे खड़ी रहेगी। धोखा, मजाक, फरेब, तमस्खर, कुरान की बेहरमती। इस स्याह फाम लड़की ने क्या नहीं किया था? इतना बड़ा मजाक कि एक परेशान हाल लड़की को सरसब्ज ख्वाब दिखाकर उसे उसी की मुकद्दस किताब पिकड़ा दी। ये हुआ क्या था उसके साथ? उसके हाथ अभी तक लरज रहे थे। नहायत बेयकीनी के आलम में उसे स्याह जिल्द वाली किताब के चेहरे को सामने किया। स्याह जिल्द साफ थी, बेदाग, बेलफ्ज। उसने दरमियान से किताब खोली और अरबी की इबारतें थी और नीचे अंग्रेजी के सबसे ऊपर लिखा हुआ था अल कहफ द केव। उसने चंद सफ़े आगे खोले। अल अनकबूत द स्पाइडर। उसने शुरू से देखा। अल मुआयदा द टेबल स्प्रेड। मखमल ने किताब बंद कर दी। आगा जान ने ठीक कहा था, वो कुरान था, उनकी दीनी किताब, मुकद्दस किताब। और इस फरंगन ने कैसे कैसे किस्से कर दिए थे। उसके साथ जलील औरत वो शौक से निकली तो बेपनाह गुस्सा आया। वो लड़की तो अपने घर में बैठी इस पर हंस रही होगी, उसका तो तमस्कर उड़ा रही होगी। वो भी कितनी जल्दी बेवकूफ़ बन गई। उफ! वो तेज़ से इस कदमों से सीढ़ियों की तरफ लपकी। ना सर पर दुपट्टा, ना वुज़ू, ना नमाज, और चले हैं कुरान पढ़ने। ओनो लाउंज के बड़े सोफे पर बैठी ताई उसे जीना उतरते देखकर ऊंचा बड़बड़ाई थी। बड़े से सदमे के बाद आगा जान ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मखमल की वजह से। कोई भी जवाब दिए बगैर सर झुकाए तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।